today we are starting the Unit 3 Incredible India. In this chapter, we will study about so many different things about our country, our culture, our rich diversity, and also the meaning of culture, diversity, and such kind of things. So, in this unit, we will mostly focus on that how we have the different type of large societies, how our country is a unique beauty, and we have so many other things our country. हमारी कंट्री कैसे अलग अलग होने के बावजूद भी विद डिफरेंट स्टेट होने के बाद भी इट ऑलवेज बिलोंग्स टू वन यूनियन स्टेट, वन इंडियन स्टेट, है ना. हाउ वी शेयर द कॉमन गोल, how we have same beliefs and meaningful development. These kind of things we will study about. The traditional Indian belief in Vasudev Kutumbakam means कि कैसे हमारा सोशो कल्चरल प्रैक्टिस शो करता है वासुदेव कुटुंबकम. These words represent the वर्ल्ड इन वन फैमिली. ये क्या बताता है? द वर्ल्ड इज वन फैमिली. जो वर्ल्ड है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, वो क्या है? इज वन फैमिली. वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? एक फैमिली है. एंड दिस इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अ उपनिषद, अ हिस्टोरियन बुक वेयर वी हैव टेकन दिस वर्ड. नाउ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कलर, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, वॉइसेस हैं, स्टोरीज़ हैं, अलग तरीके के लोग हैं, उनके अपने अपने ट्रेडिशन हैं. हमारे पास देखने के लिए माउंटेन से लेके रिवर्स हैं, एवरीथिंग वी हैव इन इंडिया. हमारे पास मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीव्स हैं, हमारी करेंसी अलग है, एक नेशनल सिंबल है. सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन दीज टू चैप्टर्स. ऑलराइट, एंड हाउ वी सेलिब्रेट देम टुगेदर. So today we are going to start our new chapter, that is our vibrant country. A special day in school. It was January 26. And can you tell me which day we celebrate on this? Yes, we celebrate the Republic Day. Do you know why we celebrate the Republic Day? Can anybody tell me? Alright, so I'll tell you that why we celebrate the Republic Day. So, we celebrate the Republic Day because on January 26, 1950, which date I am talking about? January 26, 1950. On that day, we officially came into effect of our constitution. We made a constitution and the constitution come with the effect on this date, and that's why we celebrate it, because India on that day become a democratic republic, means where we do everything for the people, by the people. ठीक है, and our country become democratic republic. Now we came to school early and has gathered around the flagpole in lines. और हम लोग फ्लैग पोस्ट के आसपास खड़े हो गए. So maybe you have also observed that whenever you come on 26th in your school, we always celebrated in a very beautifully manner, है ना. We usually decorate our school. We usually decorate with flowers. We make so many things, and sweets are distributed on that day to the children. And now our head teacher pulled the rope and a tricolor flag unfold the rhythm of drums. ड्रम्स की बीट पे ट्राइकलर फ्लैग क्या हुआ? अनफोल्ड हुआ, क्लैपिंग हुई, और उसके बाद क्या हुआ? नेशनल एंथम गाया गया विद प्राइड एंड यूनिटी, विद फुल फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड द यूनिटी. नाउ डू यू नो द सैफरन कलर? दिस कलर at the top of the national flag stand for the strength. It comes for the strength and courage. This white color, जो ये white color है, this white color band is the peace and the truth. मतलब
शांति का प्रतीक है और सच बोलने का प्रतीक है। इसके बीच में आपको ये अशोका चक्र दिख रहा है। दिस अशोका चक्र रिप्रेजेंट द ड्यूटी, कि हमारा क्या ड्यूटी, हमारा क्या धर्म है हमारे इंडिया के प्रति। और जो ग्रीन कलर का जो बैंड है वो दिखाता है कि हमें कैसे ग्रोथ लानी है और प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी है इंडिया के अंदर। नाउ what special event or activities take place in your school? Now can you tell me what kind of activities do you take place in your school? In our school we usually celebrate, what we do does is national anthem. What we do national anthem. All right, we organize cultural program. हम लोग कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, राइट, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हम लोग गाते हैं, डांस करते हैं, स्पीचेस होती हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स वी डू ऑन रिपब्लिक डे। एंड ऑल्सो येस, परेड ऑल्सो वेंट देयर। नाउ कैन यू टेल मी इन नेशनल एंथम व्हाट काइंड ऑफ रिवर, है ना, नेम एनी टू रिवर दैट कम्स इन द नेशनल एंथम। सो फर्स्ट इज गंगा and Yamuna. These two are Ganga and Yamuna. And the mountain ranges are Himalayas and Vindhyachals. On Republic Day, which activity would you like to participate in? You can tell it by your own कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी पसंद है। Yes, all right. अच्छा, क्या आप लोगों ने दिल्ली की परेड देखी है कभी भी, कि वहाँ पर क्या क्या होता है? सो प्लीज़ डू कमेंट व्हाट एक्टिविटी, व्हाट डिड यू लाइक टू डू द मोस्ट अबाउट इट, आपको क्या पसंद है, ठीक है। नाउ वी इंजॉयड वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली। ये लोग न्यू दिल्ली गए थे और उनको बहुत मज़ा आया देखने में। द फाइटर जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, फाइटर जेट्स ऐसे आवाज़ करते हुए जा रहे थे। द स्टेट टेबलेक्स, नाउ व्हाट इज टेबलेक्स? सो टेबलेक्स इज नथिंग बट एन इवेंट और पीपल फ्रॉम हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप ये ऊपर मूवी में यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंडिया की डिफरेंट कंट्रीज में से आपको ये शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ये चीज़ें जो मूव नहीं करते, दे जस्ट शो the different type of events and histories of the people, they are known as tablets. All right, they do not move, they are the artifacts जो दिखाते हैं। and the cultural program, different type of states shows different type of cultural program and so many parades and other things, you know, it is very beautiful. The parades also feature Indian Defence Forces. परेड कहाँ कहाँ से आती है? आर्मी भी करती है, नेवी करती है, एयरफोर्स करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो दिखाते हैं। आवर टीचर आस्क्ड व्हाई रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। एज आई आंसर्ड, हमने आपको अभी बताया कि 26 जनवरी को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वी विल सी, इंडिया जो है ना रन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क, मतलब सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है हमारा इंडिया। पोस्टल नेटवर्क, so postal network is where the post offices and other services point out and transport routes that connect them and use for delivering mails and parcels. तो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा क्या है? लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है। नाउ इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1947 and you must have observed that we celebrate 15th August and Independence Day. उससे पहले हम लोग फ्री नहीं थे अपना कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, पर बहुत सारे ऐसे ब्रेव पीपल थे जिन्होंने स्ट्रगल किया एंड हम उन्हें आज भी अपने कंट्रीब्यूशन में याद रखते हैं और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। सो देयर आर सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स दैट हेल्प्स अस। किस लिए उन्होंने हेल्प करी थी हमारी, कि हमारा इंडिया क्या हो पाए? आज़ाद हो पाए। नाउ वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे जॉलीफुली, ठीक है, हम बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमारी कंट्री जो है वो फ्री हुई थी, तो वॉट एवर दे वॉन्ट, ठीक है, नाउ अब हर कोई कुछ भी कर सकता था। इमेजिन दैट वुड हैपन अगर
इफ़ देयर वर नो रूल्स, अगर कोई रूल्स ना होते तो क्या होता? तो जिसका जो मन आता वैसे करता, चाहे कोई भी राजा बन जाता, कोई प्रजा बन जाता, कोई कुछ बनना चाहता। पर इसके लिए और हमारी कंट्री को स्मूथ चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाए गए, और वही रूल बुक जो हमारी रूल बुक थी उसी को हमने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन बोला। कॉन्स्टिट्यूशन बुक बनाई हमने, जो मैंने भी आपको बताया भी था कि उन्होंने क्या बनाया, हमने एक स्पेशल रूल बुक बनाई जिसे हमने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन बोला। और इसी को हमने फॉलो किया 26 जनवरी 1950 वाले दिन, और इसी वजह से हम इसे 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वी वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट इंडिया। अब हम चाहते हैं कि हम इंडिया के बारे में और भी कुछ पढ़ें। पर आपने कभी भी ऐसी कोई चीज़ देखी है जो इंडिया में चलती है, जिसे हम बोलते हैं नोट, करेंसी नोट? अच्छा, आपको पता भी होगा ना कि अभी कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन आने पर हमारे बहुत सारे जो 2000 मतलब कुछ नोट्स थे, जैसे 1000 के थे, 500 के थे, वो सारे नोट क्या हुए थे? बैन हो गए थे। एंड दे चेंज्ड, वो चेंज हो गए थे और उनकी जगह पे न्यू करेंसी आई। और न्यू करेंसी आने पर क्या बना? 2000 का नोट बना, 500 का बना, एंड धीरे धीरे करके हमारे सारे नोट्स क्या हुए? एक्सचेंज हुए। यस, नाउ टेक एनी इंडियन करेंसी एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। हम लोग इसको करेंसी को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे वैल्यू ऑफ द नोट। सो वैल्यू क्या होता है ना, हर नोट के ऊपर कुछ नंबर लिखा होता है। जैसे ये नंबर लिखा है 10, तो यहाँ पे क्या है? 10। अगर किसी की वैल्यू 20 है, किसी की 100 है, तो वो उस वैल्यू में ट्रीट होगा। नेक्स्ट, कलर ऑफ द नोट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सम कलर्स आर ब्राउन, सम आर ग्रीन, सम आर पिंक, है ना? अदर different colors are there. So we have the different colors of different currency notes. Now you must have observed that there are so many languages, है ना? Number of languages are there on note. नोट के ऊपर different type of languages लिखी होती हैं। कितनी है? So we have total number of 15 languages, and these languages contain Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu and Urdu. Plus, apart from these two, we can see Hindi and English also. So name the monument. So you will see that on every single note, ठीक है, on every single note there are different monuments present on it. You can see that on 10 rupees note we have the Konark Sun Temple. What it is? Konark Sun Temple. But on the other notes, what we have on 20 rupees notes? Let me just write it here. On 20 rupees notes, what it is? Rupees 20 notes. What it is? It is Ellora Caves. Ellora Caves. On 50 rupees, it is Hampi with chariot. On 100 rupees, Rani Ki Wow. On 200 rupees, Sanchi Stupa. What it is? Sanchi Stupa. And on 500 rupees, it is Red Fort. क्या है? Red Fort. Yes. Symbols seen on the notes. So you can see there are so many symbols you can see. है ना? You can see first this, second this, right? Next you can see the national emblem. Yes, national emblem. So we'll talk about this later. Image of the animal which can be found. So in our national emblem we can see the different animals. Any message written on the note? Yes, of course there are some messages written on the note. For example, Reserve Bank of India. Yes, 10 rupees.
So these are the things that is written here. Anything else you can see? Yes, we can see that there is always one number here. So this represent the number or printing number. Alright, look at the picture on the currency note. The teacher said, क्या आप बता सकते हैं कि हमने महात्मा गांधी को देखा है ना, हमने सबने देखा है। तो ये जो चश्मा है ये कहाँ से है? इट इज़ द सिंबल ऑफ दैट। ऑलराइट, क्या आप बता सकते हैं एक्चुअली में ऊपर 2 इमेज हैं ऑफ हिम ऑफ ईच नोट, वहाँ पे उनकी इमेज क्यों है? और आप जब नोट को देखेंगे, वी वर सरप्राइज टू सी अ स्मॉलर इमेज ऑफ गांधी जी विच वी हैड नॉट सीन बिफोर, जो हमने पहले नहीं देखी थी। एक टाइनी स्पेक्टिकल्स भी हैं, राउंड स्पेक्टिकल्स भी हैं, जो स्वच्छ भारत को दिखाते हैं उनके कदम की ओर। दीज स्पेक्टिकल्स आर द सिंबल ऑफ नेशन वाइड मिशन। एक पूरे देश का एक मिशन है जो है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मिशन। दिस मिशन कम्स इन 2013, जहाँ पे ये नेशनल जो यहाँ पे ये सफाई अभियान हमने चलाया था, और उसके बाद से तो हमने 2013 में ये आया था। उसके बाद 2014 में हमने ये अभियान स्टार्ट किया, एंड फ्रॉम दैट टाइम टू टिल नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। तो अब ये क्वेश्चन आता है, वाई गांधी जी? बिकॉज गांधी जी वॉज वेरी पर्टिकुलर दैट एवरीवन शुड keep their surroundings clean, and Gandhiji himself clean his surroundings by himself. He does not take anybody's help, and उन्होंने खुद नहीं, उन्होंने सब कुछ साफ़ किया, एंड वो क्लीनिनेस के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर थे, लोगों को अवेयर करते थे कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। इस वजह से वी हैव टेकन इट एज अ सिग्नेचर। नाउ इंडिया बिल्ट आधार, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजिटल ID सिस्टम, issued over 99% ऑफ अडल्ट इन इंडिया। नाउ यू नो दैट आप लोगों का भी आधार कार्ड बना है ना। आधार कार्ड क्यों बना है? ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारी जितनी भी चीज़ें हम उन्हें गैदर कर पाए और हम बता पाए कि हम यहाँ के क्या हैं, एक सिटीजन हैं। नाउ सम करेंसी नोट्स ऑल्सो हैव रेज्ड प्रिंट्स एंड सिम्बल्स टू हेल्प पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट आइडेंटिटी। कुछ ऐसे नोट भी आते हैं जहाँ पर जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिन्हें नहीं दिखता है, वो सिम्बल्स ऐसे प्रिंट किए जाते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए, आइडेंटिफाई कर पाए डिफरेंट करेंसी नोट्स को, ताकि उन्हें फील कर पाए उनके वाइब्रेशंस को, ताकि हमें पता चल सके या उन लोगों को पता चल सके कि कौन से वाले नोट की बात हो रही है। नाउ यू हैव सीन द एम्बल, जहाँ पे हमने क्या बोला था कि डिफरेंट एनिमल्स भी हमें क्या होते हैं, शो होते हैं। Now we will see the 3 lions standing on a circular platform. So are these only the 3 lions? No, there are 4 lions, and in each direction we have 1 lion. 1, 2, 3, and at the back 4th. नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस को। ये जो लायन है, यू कैन ऑल्सो सी एन अशोक चक्र, ये अशोक चक्र पे भी आपको मिलते हैं, एंड ऑल्सो देर आर सम अदर एनिमल्स which are here. You will see several places and documents. It can also be found on आधार कार्ड। सो हमारा जो नेशनल सिंबल है, नेशनल एम्बल का जो सिंबल है एम्बलम का, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अ लॉन्ग टाइम अगो लायन यूज टू रोम फ्रीली। लायन क्या करते थे, घूम सकते थे इधर से उधर बहुत वास्ट एरिया में इंडिया के। टुडे दीज लायंस आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। क्यों? क्योंकि उनके नंबर्स बहुत कम हो गए हैं, and the number had got down only a few dozen about 150 years ago। और बहुत साल पहले ही ना, मतलब 150 years ago पहले ही जो लायन थे उनका क्या करा जाता था, उनको हंट किया जाता था, है ना। ड्यू टू द हंटिंग उनकी जो नंबर ऑफ लायंस थे दे गेट डिक्रीज्ड, वो कम होते चले गए। तो हमारी कंट्री ने एफर्ट बनाया टू सेव द लायन, and it is the matter of pride that India has several hundreds of lion in the wild। और हमने फिर से उनकी जो नंबर है वो क्या करा है, इंक्रीज़ करा है। अब डिज़ाइन एन एम्बलम फॉर योर स्कूल, अब आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप क्या शेप देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सिम्बल्स दैट स्पीक, नाउ सिम्बल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडिया। जस्ट लाइक एम्बलम, आर नेशनल सिम्बल ऑल्सो रिमाइंड ऑफ अस हु वी आर, कि हम क्या है, एंड ये हमें प्राउड कराता है कि हम क्या हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। क्लियर? रीड द रिडल गिवन बिलो, गेस द नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया। नेशनल सिंबल बताना है इंडिया का ये क्या है।
ओके। I wear orange with black stripe bold. I walk in the forest deep and old. With a mighty roar, I rule the land. Guess who I am? Strong and grand. So, what am I? I am national animal of India. And national animal of India is tiger. क्या है? टाइगर है। I dance in the rain in morning light with green and blue feather bright. With a crown upon my head, I stand so tall. It is a joy to watch when I move my tail. So ये क्या है? National bird of India and it is peacock. Okay. All right. States also have some symbols with the help of your teachers. Now, here I am your teacher and I am here in Karnataka. So, I'll tell you the state animal of Karnataka, state tree, state bird and state flower. You can mention your own state. I am in Karnataka, so I'll tell you the area. So, state animal of Karnataka is Asian elephant. Asian elephant. State bird. So state bird is Indian roller. Indian roller. State tree sandalwood. And state flower lotus. All right. Now our vibrant culture. Now we will talk about the culture. By looking closely a simple currency note. जब हम एक simple currency note को देखते हैं, हम ये देखते हैं that people speak many languages. As I already told you that there are 50 languages written on the note. तो हम ये देखते हैं कि बहुत different क्या है, हमारी languages हैं. ईच लैंग्वेज इज़ वेरी रिच, मतलब बहुत अच्छी है, अपनी हिस्ट्री में उसने बहुत अच्छे से काम किया है, जिसमें सॉन्ग्स बने हैं, स्टोरीज बनी हुई हैं, और 1000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस आर कंट्री, और 1000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बल्कि ये भी कहा जाता है कि अगर इंडिया में हम 20 कोस चल जाएं तो वहाँ पे हमारी लैंग्वेज क्या हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। Okay, now we will do this. Name of the language, what it is said. So we will see that, for example, we are taking the word mango here, and what we call in Tamil, Telugu, Marathi and Bengali. So in different languages, for example, in Tamil we say it Mampalam, in Telugu we say it Mamidi, in Marathi we say it Amba, and in Bengali we say Am. So there are other languages and we say the same thing in different language. पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? इट इज़ इन गुजरात. व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट? द नरेंद्र मोदी स्टेडियम. और वहाँ पे आप 1,32,000 स्पेक्टेटर मीन्स जो देखते हैं वहाँ बैठ के, इतनी बड़ी गैदरिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं. नाउ पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री. पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. अलग अलग खाना खाया जाता है, डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स पहने जाते हैं, अलग अलग सॉन्ग एंजॉय करते हैं, एंड डांस दैट आर यूनिक और स्पेशल इन देयर एरिया. और डिफरेंट डांस फॉर्म भी परफॉर्म करते हैं. जैसे पंजाब में क्या करते हैं? भांगड़ा करते हैं, है ना. Let us think of a garden or a forest. Many gardens have fewer variety of plants. बहुत कम वैरायटी होती है प्लांट्स की, लेकिन दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट केयरिंग और वाटरिंग. उनको क्या चाहिए होती है? कॉन्स्टेंट उनकी केयर करो, उनको पानी देते हो. अ फॉरेस्ट दैट हैज़ मैनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत वैरायटी है प्लांट्स की, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं. द अमेजिंग थिंग क्या है कि वहाँ पे कोई भी डिफरेंट प्लांट्स रहते हैं, डिफरेंट ट्रीज, डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, और उनकी कोई भी हेल्प नहीं करता. दे लुक आफ्टर इटसेल्फ, वो खुद ही अपने लिए देखती हैं.
बट ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर ब्यूटिफुल। जैसे एक फॉरेस्ट है जहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, वो खुद ही बढ़ते हैं और खुद ही नए बन जाते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे ही हमारी इंडिया भी जो है वो डाइवर्सिटी, जो हमारी इंडिया की अंदर डाइवर्सिटी है वो हमें और मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्गर बनाती है और सेल्फ सफिशिएंट बनाती है कि हम अपने लिए सब कुछ खुद कर पाए। अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी हर जगह है, ठीक है। कैसे डाइवर्सिटी हर जगह है? जैसे राजस्थान में मेन वेयर कलरफुल साफा और पगड़ी, उनकी पगड़ी बहुत कलरफुल होती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में लोग क्या पहनते हैं? टोपी पहनते हैं, जिन्हें हेडगियर कैन टेल वेयर एवरीवन इज फ्रॉम। तो मतलब एक इंसान ने क्या पहना हुआ है, जैसे पंजाब में क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं, है ना। तो एक सिर्फ और सिर्फ हेडगियर मतलब सर पे पहनी हुई चीज़ को भी हम देख के बता सकते हैं वेयर दिस पर्सन बिलोंग्स, कहाँ से वो इंसान है और कैसे है। ऐसे ही सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, ऑनर एंड कल्चर, जो वहाँ के ऑनर को मतलब वहाँ का उनको कितना गर्व है अपनी चीज़ों पे, कितना उनका कल्चरल हेरिटेज है, ये सब बताते हैं। कि और आप देखेंगे कि जो शादियाँ होती हैं, शादियों में सबकी अपनी अलग अलग इतनी ज़्यादा कस्टम्स, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम बता पाते हैं कि दिस ओकेजन इज़ फ्रॉम विच स्टेट और ये कैसे स्टेट्स में मनाया जाता है। तो अब क्या आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा हेडगियर कहाँ पे पहना हुआ है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सो आवर फर्स्ट हेडगियर इज पगड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं? पगड़ी। एंड इट इज worn by राजस्थानी मेन, राजस्थानी मेन के थ्रू ये डाली जाती है। दिस इज़ द नॉर्मल हेलमेट, वी वेयर इट फॉर आर सेफ्टी वाइल साइकिलिंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज मोस्टली वेयर इन राजस्थान और जोधपुर स्टाइल। सो दिस इज जोधपुर स्टाइल पगड़ी वेयर इन राजस्थान एंड जयपुर। So our next is a traditional headgear with ornament that is mostly wear in northeastern state of tribals area. So this is the tribal headgear of northeastern states. Next is our red pahadi cap. It is also what? A pahadi cap, mostly wear in Garhwali, Kumani style, Himachal Pradesh area. So next is, this is a famous Himachali cap, a famous Himachali cap, and the last is called the turban. Turban, and it is mostly worn by Sikh people in Punjab. Okay, now we will study about the headgears. And we have seen that above that people wear helmet for the safety purposes also. So headgear is also worn for protection. Protection के लिए भी पहना जाता है, हीट से बचने के लिए, कोल्ड से बचने के लिए और स्पेसिफिकली इंजरी से बचने के लिए। हेलमेट यूजुअली सोल्जर्स भी पहनते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी पहनते हैं और पीपल जो माइंस के अंदर और टनल्स के अंदर काम करते हैं, गुफाओं में काम करते हैं अंदर, वो लोग भी क्या करते हैं? पहनते हैं। रोड सेफ्टी में हेलमेट्स का पहनना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेसिफिकली वो लोग जो साइकिल चलाते हो या टू व्हीलर चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, ताकि हम लोग हेड इंजरीज को बचा सकें। हेलमेट्स पहनना एक ट्रैफिक रूल में इट इज़ अ कंपल्सरी रूल। अगर आप हेलमेट नहीं डालते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? चालान मिलेगा, आपको उसका पे करना पड़ता है। एंड हेलमेट इज़ आर फॉर सेफ्टी, स्पेसिफिकली मस्ट बी वर्न ऑन टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स में पहनना तो क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ विल टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट। इंडिया सिर्फ और सिर्फ कल्चर में वाइब्रेंट कैसे है? कल्चर में सिर्फ और सिर्फ कपड़ों से नहीं, खाने से नहीं, बल्कि वहाँ के सॉन्ग्स, वहाँ का म्यूज़िक से भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट तरीके से क्या है? रिच है। सो इट इंक्लूड्स म्यूज़िक एंड डांस, है ना। एंड वी सेलिब्रेट बाई प्रेइंग, शेयरिंग स्टोरीज एंड ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। इवन अ सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ड्रम जैसा दिखता है और अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में,
एक ड्रम हैज़ इट्स ओन रिदम, हर ड्रम की अपनी रिदम होती है, अपनी साउंड होती है, अपनी शेप होती है जो लोकल कल्चर से आई है, अपना एक ट्रेडिशन होता है और उसका अपना बनने के लिए एक मटेरियल होता है। नाउ विल सी द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रम्स, ठीक है। सो आवर फर्स्ट इज पखवाज। पखवाज जो है ना वो मेनली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे एरिया में मिलता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एरिया में। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये यूजुअली मैंगो वुड का बना होता है या जैक फ्रूट वुड का बना होता है। और जो इसकी ये वाली जो स्किन होती है, दिस स्किन इज़ अ लेदर ड्रम। ये कैसा ड्रम होता है? लेदर ड्रम होता है। ऑल राइट। सेकेंड इज धमा। धमा इज़ यूजुअली यूज्ड इन नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, स्पेसिफिकली इन सिक्किम, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है। एंड वुडन बॉडी होती है इसकी भी सेम वुडन बॉडी होती है, बट दिस इज द एनिमल स्किन। इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? एनिमल स्किन। कौन सी स्किन होगी? एनिमल स्किन होगी। और किसकी? मे बी गोट की हो सकती है, ठीक है, या काऊ है। नेक्स्ट हमारा होता है खंजीरा। खंजीरा जो होता है ये होता है हमारा सदर्न इंडिया का, सदर्न इंडिया में पाया जाता है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और मेजरली यूज़ होता है हमारा तमिलनाडु में। कहाँ यूज़ होगा? तमिलनाडु में और कर्नाटका में इसको बजाया जाता है। ये भी वुड का ही बना होता है अगर ये, और दूसरा इसमें मेटल डिस्क भी होते हैं, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, दिस इज दिस थिंग, दिस इज अ मेटल डिस्क। यहाँ पे मेटल्स का भी यूज़ किया जाता है इन्हें बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है ढोल। ढोल मेजरली यूज इन वेयर? पंजाब, गुजरात एंड महाराष्ट्र, है ना। आपने देखा है बहुत सारे जब फेस्टिवल्स आते हैं यहाँ पे हम क्या देखते हैं? बहुत बड़े बड़े ढोल देखते हैं। सो दीज ढोल्स आर यूज्ड हियर। एंड यहाँ पे भी हम क्या बनाते हैं? दिस इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। तो मोस्टली ये सारे किसके बने होते हैं? वुड के ही बने होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। नेक्स्ट हमारा आता है मृदंगम। तो मृदंगम जो होता है इट इज़ यूज फॉर कार्नेटिक म्यूज़िक। कौन से म्यूज़िक के लिए यूज़ होगा? कार्नेटिक म्यूज़िक के लिए यूज़ होगा। एंड इट इज़ मेजरली यूज इन तमिलनाडु। और इसके ऊपर एक ब्लैक टनिंग पेस्ट ऑन वन हेड, यहाँ पे एक तरफ ब्लैक पेस्ट होता है, प्लस ये गोट स्किन मेम्ब्रेन से बनता है। इसका साइड गोट स्किन मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज़ आर ढोलक। ढोलक जो है वो फोक सॉन्ग में या कहीं पर भी जब डिवोशनल, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, तब हम ढोलक का यूज़ करते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्या? ढोलक। नेक्स्ट वी हैव द थविल। थविल अगेन यूज इन टेम्पल्स एंड फॉर फोक म्यूज़िक, और ये सदर्न इंडिया में यूज़ किया जाता है, प्लस स्पेसिफिकली इन तमिलनाडु। और तविल जो है वो कहाँ यूज़ होता है? तविल यूज्ड इन टेम्पल्स एंड फोक म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ आर इडक्का। इडक्का कहाँ यूज़ होता है? केरला में। कहाँ यूज़ होगा? केरला में। एंड दिस इज़ अ आर ग्लास शेप। ऐसी शेप का होता है इसे हम ये यूज़ होता है केरला में। आर ग्लास शेप होती है और ये भी किसका बना होता है? वुड का बना होता है। नेक्स्ट इज़ आर खोल। खोल इज़ समथिंग इन द शेप ऑफ योर कोकोनट, है ना। कोकोनट का शेप होता है, इसे खोल बोलते हैं। ये मेजरली वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड असम यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टेरिकोटा, मतलब क्ले। टेराकोटा का बनाते हैं, इसे हम क्ले बोलते हैं। और वुड बॉडी का बना होता है। और इसके साथ क्या होता है? ड्रम हेड्स होते हैं इसके, जिन्हें हम क्या बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नागरा। नागरा इज़ यूज्ड इन हिमाचल प्रदेश। नागरा इज़ यूज्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अलावा नागरा कहाँ यूज होता है? राजस्थान। एंड हमारे नॉर्थ इंडिया में ये क्या होगा? यूज़ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल, कॉपर और ब्रास, ठीक है। मेटल का बना होता है और मेटल में क्या यूज़ करते हैं? कॉपर एंड ब्रास अलॉन्ग विद वुड। वुड के साथ इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है इसे बनाने के लिए। एंड इट इज़ यूज्ड इन वेयर? हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट इज आर
तबला, तबला इज़ यूज इन उत्तर प्रदेश। एंड आपने बात देखी होगी उत्तर प्रदेश में भी देर आर सम घरानाज, वेरी फेमस घराना इज़ लखनऊ घराना। वहाँ के लोग इस तबले को बहुत प्यारा बजाते हैं और ये किससे बना होता है? इट इज़ द वुड और यूजुअली शीशम की लकड़ी से, यानी शीशम वुड से इसे बनाया जाता है। ओके, नाउ सिमिलरली वी ऑल्सो यूज़ अ वेराइटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे मृदंग कर्नाटिक म्यूजिक, सितार एंड शहनाई हिंदुस्तानी म्यूजिक, एंड वी यूज इट इन अ डिफरेंट वे। ओके, एंड इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम यहाँ पे पहली लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे हम लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों के द्वारा ही ये काम करे जाते हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ डांस फॉर्म्स। I know there are so much information that you need to memorize, but if you will watch this video again and again, it is very easy for you to remember everything. Alright, so our first dance is गरबा and ये गुजरात में किया जाता है सबसे ज़्यादा। सेकेंड इज़ आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं। थर्ड वन इज़ आर भांगड़ा जो हम पंजाब में करते हैं। फोर्थ इज़ आर घूमर जो हम कहाँ करते हैं? राजस्थान में करते हैं। फिफ्थ इज़ मोहिनी अट्टम जो केरला का बहुत प्रसिद्ध डांस फॉर्म है। सिक्स्थ इज़ कथक जो यूपी में किया जाता है। सेवेंथ है हमारा बिहू जो असम में किया जाता है। एट्थ है हमारा भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में किया जाता है। एंड द लास्ट नाइन्थ इज़ आर मणिपुरी जो मणिपुर में किया जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंट डांस फॉर्म्स दैट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। नाउ वी विल कम स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस। इंडिया इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, जहाँ पे इंडिया साथ में काम करता है। एक चीज़ और देखते हैं, इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। तो हमारे रोड आपस में इतने ज़्यादा कनेक्ट है और इतने ज़्यादा रोड बने हुए हैं इंडिया के अंदर, सो इट इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। एंड ऑल्सो इंडिया इज़ द फर्स्ट स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट यूजेज ऑफ यूपीआई सिस्टम। यूपीआई सिस्टम आप लोगों को पता है, हम फ़ोन पे कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, है ना। तो दिस इज़ द यूपीआई सिस्टम। नाउ कम बैक टू द पॉइंट, वी हैव अ रिच वेराइटी ऑफ लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, एंड वी लिव टुगेदर। तब भी हम लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। इंडिया का हर रीजन ये बताता है कि वहाँ की एक अपनी अलग और यूनिक स्टोरी है और इंटरवीवन टुगेदर लाइक अ थ्रेड। और हम लोग आपस में सब जैसे धागा आपस में उलझ जाता है वैसे ही हम सब आपस में उलझे हुए हैं। दीज डिफरेंट थ्रेड्स आर वोवन टुगेदर इनटू वन स्ट्रॉन्ग थ्रेड। एक अच्छा मोटा धागा बनाया गया है। इन पतले पतले ट्रेडिशन, इतने पतले पतले हमारे अलग अलग क्लोथिंग सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, लैंग्वेज सिस्टम को यूज़ करके इंडिया एक अच्छी क्या बनाई गई है? कंट्री बनाई गई है। इट इज़ वाइब्रेंट फैब्रिक फुल ऑफ एनर्जी, कलर एंड लाइफ। और हर जगह आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। हमारी एक बहुत रिच हिस्ट्री भी रही है, कल्चरल प्रैक्टिसेस रही हैं, जहाँ पे हमने आयुर्वेदा का बहुत सपोर्ट किया है, योगा बहुत करा है और मेडिटेशन को हमने बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया है कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। एक्साइटिंग फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड। साइंटिस्ट जो है अब ये लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, फार्मर यूज़ कर रहे हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, अच्छी क्रॉप उगाई जा रही है, चिल्ड्रंस को अच्छी लैंग्वेज लर्निंग सिखाई जा रही है, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा स्टेम प्रोग्राम होता है ना। आपके स्कूल में स्टेम प्रोग्राम होते हैं, अटल लैब बनी हुई है। तो ये सारी क्या है? इट इज़ द स्टेप फॉरवर्ड फॉर व्हाट? इट इज़ द स्टेप फॉरवर्ड फॉर द betterment of our India. Yes, along with the dance and music। और डांस और म्यूज़िक के साथ साथ हम लोग सब कुछ
करते हैं। देखो हमारे पास अब बुलेट ट्रेन्स आ गई है, हम लोग रॉकेट बना रहे हैं, हमारे पास मेट्रो सिस्टम आ गया है, डिफरेंट ब्रिजेस आ गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं, हम लोग ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं, एंड दीज आर द ब्रिजेस फॉर आवर कंट्री। प्लस नाउ वी कैन ट्रैवल मच फास्टर देन द प्रीवियस वन। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्स या रोड्स नहीं, वी हैव व्हाट, वी हैव एयरप्लेन्स ऑल्सो टू ट्रैवल फास्टर। नाउ वी हैव द डिजिटल पेमेंट्स, हम ऑनलाइन ही सबको पैसे दे देते हैं, वो भी एक क्लिक के अंदर, एंड कनेक्ट विद फ्रेंड्स फैमिली अक्रॉस द कंट्री, है ना, अब्रॉड्स पहुंच जाते हैं सेकेंड्स में। एंड दीज मॉडर्न चेंजेस आर नॉट रिप्लेसिंग द ओल्ड नॉर्म्स, मतलब हम नया अपना भी रहे हैं और पुराना भूल भी नहीं रहे हैं। वी आर जस्ट एडिंग न्यू थिंग्स इन टू आवर प्रीवियस थिंग्स। एंड एज प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग बहुत प्राउड है कि हम इंडिया में रहते हैं, एंड वी शुड डू आवर बेस्ट टू केयर आवर रिच एंड वंडरफुल कंट्री, और इसके लिए हमें बहुत कुछ अच्छा करना चाहिए। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी कंट्रीज जितने भी वर्ल्ड में हैं उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। हमने इतने रूल्स बनाए हैं ताकि कोई भी इनको गलत इस्तेमाल ना करे। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।